Again, I am Dr. Manika Tomar. I will be teaching you your subject FCET. Do you have syllabus of all your subjects? Do you have syllabus of Yes, all your ma'am. subjects? You have. So, have you gone through FCET? So today we'll be seeing Yes, what ma'am. what exactly is FCET and what is it all about, right? We'll be seeing that. Before that, I would like to know all of you are comfortable with English? Yes, ma'am. Yes, Are ma'am. you Yes, Okay ma'am. with it. are you Yes. Yes. comfortable with Hindi? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Fine. So Yes, basically, I'll be ma'am. using mix of these two languages, right? Okay. Right. Okay, ma'am. Bef- Okay, Yeah, ma'am. Okay, fine, so ma'am. ma'am. good. Before starting further, I would like to know what you have studied about computers in your school. So, with whom shall I start? Someone from you initiate. Just introduce. I am Ashiva Parmar, and you can then start. Whatever you want to say. I just want to know in school what you have studied about computer during your schooling. Who is this Flexel 40? I want every one of Hello, you. ma'am. My name is Heli Joshi. Okay, Heli, just 2 minutes, huh? Yes, I'll come to you, Heli. Just wait for 2 minutes. One more announcement. Everyone will join the meeting with your Sure, name, ma'am. right? That is, I don't want this Flexel 40 such names, right? Today I am allowing you join with your proper name, okay? Join with your proper name. Fine. Yes, Heli, continue. Yes, during my 12th, Yes. I studied Hmm. programs, software, Program. hardware, Acha. So, did you study any programming language? कोई प्रो HTML, CSS, अच्छा हाँ वो Java. अच्छा जावा भी पढ़ी है तुम लोगों ने राइट तो Yes, ma'am. एच टी No, एम एल इज ma'am. बेसिकली ओके सबने नहीं बेसिक पढ़ी इट्स मतलब ओके बेसिक पढ़ा है. बेसिक पढ़ा है डन डन नो प्रॉब्लम और एच टी एम एल बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है वो वेब डिजाइनिंग के लिए यूज होता है राइट वेब पेजेस वगैरह डिजाइन Right. करोगे ना फॉन्ट वगैरह के लिए हाँ सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा यू सेड इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिमिलरली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ So प्रोग्रामिंग basically, मैम उतना लैंग्वेज वो बेसिक में जो आता है डन वो सब पढ़ा है. Done. So you are aware of like what is hardware, software, these all things you're aware of, right? This is about Heli. School sometimes. Yes, ma'am. RAM, Okay. ROM. Acha. Fine. So primary, secondary memory, you're aware of all those things? Yes, ma'am. Some kind Fine. of that. Some kind of that. Okay. A bit of that I can say, right? A very basic. Yes. Because computer is Yes. actually a subsidiary subject, right? Main subjects in 12th are either your math, science, or such subjects, right? Yeah, Fine. ma'am. Okay. This is about Heli. Now, you people, somehow, some of you might be from CBSE board, some of you are from Gujarat board. So, maybe, is computer a optional subject or a compulsory subject in 12th? Is it optional मैम or हमारा तो ऑप्शनल था. आपका ऑप्शनल था आप Optional. कौन से बोर्ड से हो हेली GSCB. जीएससीबी गुजरात बोर्ड ओके ठीक है तो ऑप्शनल था तो कितने लोगों का ऑप्शनल था मैम मेरा भी। मेरा भी। मैम मेरा भी। ललित तुमने मेरा भी मैम। ओके डन डन ललित आपने मेरा भी। कंप्यूटर ऑप्ट करा था नो मैम। ठीक है ओके फाइन तो रैंडमली अगर 60 स्टूडेंट में से जिन लोगों ने कंप्यूटर्स करा था वो एक बार यस बोलो ना हेली को छोड़ के तो आई जस्ट मैं रैंडम यस। कुश यस। 3 Yes, then यस। ma'am. 4 5 Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. 7 यस। 8 9 10 Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 11 यस। 12 13 यस मैम। 14 anyone else तो मैं मान के चलती हूँ लेस देन 30% of Yes. you are from computer background okay still 15 so I consider that 50% of you are from a bit of computer program okay good अच्छा एक और question it is your like this is our first class of FCET so I would like to ask why have you selected BCA after 12th do you want to become software engineers all of you Yes, ma'am. Yes, यस। ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके फाइन सो दिस इज द पर्पस तो इतना तो पता है ना कि बीसी के बाद क्या बन सकते हैं
सॉफ्टवेयर Yes, इंजीनियर, ma'am. फाइन, ओके। अच्छा, Yes, ma'am. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनने के लिए तुम्हें ये पता है कि बेसिक सिर्फ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस करने के बाद भी यू हैव वेराइटीज ऑफ जॉब, लाइक वन इज प्रोग्रामर। अभी बहुत डिटेल में नहीं, बहुत शैलो लेवल बताती हो तुम लोग को, शायद तुम लोग को पता भी होगा क्योंकि पिछले लेक्चर्स चल चुके हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के। तो यू माइट बी नोइंग दैट आप एक तो प्रोग्रामर या डेवलपर बन सकते हो, है ना, यानी प्रोग्राम डेवलप करना, राइट। दूसरा, यू कैन बी ओनली अ वेब डिजाइनर ऑल्सो, मतलब खाली वेब पेजेस डिजाइन करना, वेब पेज डिजाइन करना और बैकएंड में कोडिंग करना, दो अलग अलग चीजें हैं। डू यू नो दैट? Yes, ma'am. यस मैम। So you Yes, can be मैम Yes. हम साइबर good. सिक्योरिटी को आगे बढ़कर साइबर साइबर क्राइम में भी जा सकते हैं ना? डेफिनेटली डेफिनेटली जा सकते हो। और एक और बात बताऊंगी, जैसे ग्रेजुएशन में तुम सारे सब्जेक्ट्स बेसिक लेवल के पढ़ोगे, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद व्हेन यू आइडेंटिफाई कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, आई कैन डू टू गुड इन दिस, देन मास्टर्स में पहले एमसी और एमएससी आईटी ही था, लेकिन अब काफी सारी यूनिवर्सिटीज में मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी स्पेशल कोर्स हैं। तुम वो या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड भी स्पेशल कोर्सेज हैं। तो आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो। तो ग्रेजुएशन के एंड तक तुम डिसाइड कर पाओगे कि व्हाट डू यू एंजॉय, वेदर प्रोग्रामिंग, वेदर डिजाइनिंग, वेदर डेटाबेस साइड। और जैसे कि हमने डेवलपमेंट के बारे में कहा, डिजाइनिंग के बारे में कहा, वैसा ही डेटाबेस भी होता है। डेटाबेस के रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर में आपको? कोई सब्जेक्ट है बेटा डेटाबेस के रिलेटेड? अगर नहीं है तो नेक्स्ट सेम में होगा, ओके, नो प्रॉब्लम। सो डेटाबेस इज बेसिकली अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप वेब पेज डिजाइन करोगे, लेकिन जो डेटा आपको आपकी वेबसाइट पे दिखता है, वो डेटा कहाँ से आता है? वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो वो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? टेबल्स में स्टोर होता है। उन टेबल को क्रिएट करा जाता है, वो टेबल एक डेटाबेस में होती है। उन टेबल को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। देयर आर वेरियस टूल्स अवेलेबल इन मार्केट। सो दैट इज योर वन एरिया, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस साइट और डेटाबेस you can become database administrator. So these are wide things. Okay, after your graduation, you can either read further or you can choose any of this, whether web designing, whether web development, or whether database managing sites. So these are wide part कि आप BCA चूज करने के बाद आप क्या बनने वाले हो। Now I am sharing the screen. सबसे पहले we will be seeing a syllabus. ठीक है, हम पहले syllabus देखते हैं। जिसने लेट ज्वाइन करा है इसलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। आई एम मनिका, आई विल बी टीचिंग यू फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग सॉरी टेक्नोलॉजीज। This will be a very basic subject because we are going to target all the student, as your computer is optional subject in 12th, so many of you have not taken this subject. Tells you very basic things about the computer. You might be knowing also, some of you might not be knowing also. So those who are knowing can add on, and those who are not knowing can let me know if they are having any problem. एक और चीज, आप जो ये चैट कर रहे हो ना FIBCA, please do not chat among yourself. Do not chat among yourself on this box, right? If you want to ask me something, you have to ask me. Do not communicate with each other. Avoid communicating with each other, right? Okay. So let us see the syllabus. This is your FCET. We can call this FCET, Fundamental of Computer. पहले मैं सीधे मॉड्यूल्स दिखाती हूँ, फिर इसके अंदर क्या है वो दिखाऊंगी। पहले सीधे मॉड्यूल दिखाती हूँ। It is, your syllabus is basically divided into 4 modules. This is basically divided into 4 modules, that is 4 parts. So what throughout whole this subject, what you are going to study? We will be starting with computers. No doubt every one of you are aware of computers because most of you might have searched for your colleges using computers websites, right? So a very basic thing about what is computers, mobile and game device. Many of you use your smartphones. Is your smartphone is a kind of computer? Is your smartphone a kind of computer? True ke false? Or yes or no? Yes, ma'am. Yes, it is yes, also- ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Right. Yes, ma'am. Yes. Then we will be studying about data and information. What is data and information? A basic idea about web, applications, networks, a fundamental of everything. If I ask you, if I tell a term computer, computer के related कौन कौन से terms तुम्हारे mind में आते हैं बताओ faster. If I say computer, first thing comes in my mind is internet. What comes in your mind? Computer, internet. Then anything else? Accuracy. Accuracy, right? You said about characteristic of computer, correct? Accuracy. Then what else? I have told you random thing. कुछ भी हो सकता है. जैसे मेरे दिमाग में एक दूसरा आया mouse. Mouse is used Components. while operating. Components. CPU. Graphic CPU, card, graphic card. So you are talking about hardware, right? CPU, Right, monitors. keyboard, monitor, printer, fine. So these all things are Processor. processor, fine. So these all things right. are related, one or in another way it is related to computer. So we will be studying basic things about what is computer, what is network, wired, wireless network, and what is the new term that is cloud computing, how your computers are used in modern business. All these things will be covered in your first module. That is introducing today's technology related to computer devices and web. Then the second is, as someone told me, about hardware of computers. Motherboard, processor, memory, hard disk, and flash memory. So I can say internal part of the computers. Like hardware of computer is printer also, it is monitor also, it is mouse also. So basically in this, we will be seeing internal hardware components. That is motherboard, processor, memory, hard drive, and portable flash memory. This is all about your second unit. Then comes your third unit, that is computer code. Before that, I would like to ask you one thing. कंप्यूटर में बेसिकली डेटा कैसे स्टोर होता है? डू यू हैव आइडिया अबाउट बाइनरी नंबर्स? किसी ने सुना है? Yes, ma'am. Yes. 01. 01, right? 01. Correct. So basically all your data gets converted, right? And it is stored in a computer. तो वो convert कैसे होता है? Conversion के लिए भी there is a program written inside. There are the software which convert your data into binary numbers. There are various types of software also. So there are software that converts your data into binary number. वो डेटा को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से वेज यूज होते हैं? दैट इज हाउ यू कैन डू इट. आप बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. सो बेसिकली अ कन्वर्जन के रिलेटेड हम इस मॉड्यूल 3 में पढ़ेंगे. आई एम गिविंग जस्ट अ ओवरव्यू कि पूरे सिलेबस में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो. तो बेसिकली आप जो न्यू टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर उसके बारे में पढ़ने वाले हो, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हो. देन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कन्वर्जन्स, नंबर कन्वर्जन, डेसिमल नंबर से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ऑल दोस. ऑक्टल नंबर्स किसे कहते हैं, डेसिमल, हेक्साडेसिमल किसे कहते हैं, ये सब वी विल बी सीइंग व्हाइल वी विल बी स्टडीइंग यूनिट 3. ठीक है. राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू कि ये है क्या. हम कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे इसमें. एंड देन कम्स योर फोर्थ. This shows about latest technology, what new has been arriving. Have you ever heard about artificial intelligence, machine learning? Are you all listening about these terms these days? Am I right? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, Learning ma'am. artificial intelligence. Yes, ma'am. Right. These are latest technologies, and these are like they are like hot cakes in a market. If you are good enough in machine learning, your data science and artificial intelligence, you can get really a very good job, right? So about these new technologies like Internet of Things, blockchain, robotics, ये जो नए नए टॉपिक्स है ना, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, ये सारी चीजें अभी भी इसमें रिसर्च हो चुकी है और रिसर्च हो रही है. कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अब ओल्ड हो चुके हैं, बट ये जो न्यू टॉपिक है जिसमें रिसर्च हो रही है, जिसका स्कोप बहुत अच्छा है, वैसे टॉपिक्स हम फोर्थ मॉड्यूल में पढ़ेंगे. These we will be studying in fourth module. So this was overview of your syllabus. यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? No, ma'am. Is it No, okay? ma'am. No, ma'am. Fine. No, ma'am. Okay. So today I will be starting with very basic things.
because it is the first lecture, so we will be doing very light and basic things we'll try to understand, जो most of you might be knowing. आपने 8th 9th में भी computers पढ़ा होगा, if I'm not wrong, right? तब सबको Yes, ma'am. तब सबको कंपलसरी होता है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes. Yeah. ओके बेटा. अगर नहीं होता है तो इट्स ओके. अभी तक अगर किसी ने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है देन आल्सो इट्स ओके, डजंट मैटर. As I'll be beginning with first unit. The first thing we are going to study about computers. As I told you, before I start, can anyone define computer? You tell me, according to you, what is a computer? Can anyone define computer? Whatever you think. See, definition is not always कोई fixed definition नहीं होती है. Can anyone tell me about computer? Define. Okay. By the time A please device everyone- which yes, yes. a device which computes the input we give to it by giving a suitable output or processing. Okay, okay, which computes or process the data given as output and produces a process the data given as input and produces a output. Correct, Ashiva, right? It is a such device. Okay. Any other definition? Fine. This is good. This is correct, right? It is an electronic device, right? A device that uses either your batteries or electricity to run. Electronic device. It has ability to store, retrieve, and process. As Ashiva, your name is Ashiva. Ashiva. Okay, Ashiva. Some device that stores data, retrieves data, and process data, and then finally it produces a output. So how I can define? I can define a computer is an electronic device that manipulates information or data, that manipulates, that process, that computes data. Then your computer can store your data, retrieve data, and process data. क्या मैं कंप्यूटर में डेटा स्टोर कर सकती हूँ? कैन आई स्टोर सम? मैं अपना डेटा या फाइल किसी फोल्डर में रख सकती हूँ? Yes. Yes, ma'am. क्या मैं उस फाइल Yes, को ma'am. एक्सेस? ओके, डन. कैन आई एक्सेस दैट फाइल? क्या मैं उसे बाद में यूज कर सकती हूँ? एक बार स्टोर करा फिर मैं यूज कर सकती हूँ उसे? Yes. Yes, ma'am. It means Yes, I can ma'am. retrieve data. Correct. It means I can retrieve data, right? I can store data, I can retrieve data, and that data can be processed. Processed का simple मतलब क्या है? If say suppose I want to do a simple addition, a plus b I can do. Then अगर जिसने C programs या basic प्रोग्रामिंग करी है उसे शायद थोड़ा आइडिया होगा. अगर तुम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हो जो कोई भी दो नंबर दोगे वो एडिशन भी करता है, मल्टीप्लिकेशन भी करता है, डिवीजन भी करता है, राइट? अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बनाते तो वो प्रोग्राम क्या कर रहा है? डेटा प्रोसेस कर रहा है. डेटा प्रोसेस करना मतलब मेकिंग सम कैलकुलेशन. इट कैन बी लॉजिकल ऑल्सो, इट कैन बी मैथमेटिकल ऑल्सो. तो जैसे कि तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, आई गेस तुम इस सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, ऐसा बीसीए सी प्रोग्रामिंग. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर तुम उसमें कुछ भी इनपुट Yes, ma'am. लिखोगे और वो प्रोग्राम आपको आउटपुट देगा, दैट प्रोग्राम विल गिव यू आउटपुट. दैट प्रोग्राम विल प्रोसेसिंग योर डेटा. प्रोसेसिंग मीन्स व्हाट? either you are performing addition, subtraction, any calculation. That is an example of processing, right? So your computer can store, retrieve and process data. इसके अलावा कंप्यूटर पे क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हो, मेल सेंड कर सकते हो, यू कैन प्ले गेम्स, यू कैन ब्राउज द वेब, देन यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंटेशन, यू कैन सी वीडियो, यू कैन create a spreadsheet, that is Excel sheet. So this is all about computer. It is an electronic device that is used to store, retrieve, process data, plus it is used for various other things, like it is used for gaming, it is used for watching movies, it is used for creating Excel sheet, it is used for making a presentation, right? इसके अलावा कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा कि इसके अलावा कंप्यूटर्स कहाँ यूज होता है? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, हार्ड प्रोग्राम बनाने के लिए. Okay, for web development, right? For programming, for website development, for product development, for tool development,
computers is used, correct? Good. So these are all wide usage of computers, right? So now everyone can define the computer. Can you all define a computer? Yes. Yes, Okay, ma'am. fine, Yes, ma'am. done. Yes, ma'am. So your computer have basically two kinds of component. Those are hardware and software, right? तो हार्डवेयर का एग्जांपल शायद सबको पता होगा, है ना? So how do you define hardware? What do you mean by hardware? How can you define hardware? The thing which we can touch Physical structure. or see. ओके, सो आपके पास, सबके पास लैपटॉप है? Yes. Ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपके लैपटॉप में हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? अगर नहीं है तो भी इट्स ओके. हार्डवेयर कंपोनेंट्स, Monitor. मॉनिटर, ओके, Mouse, monitor, keyboard. करेक्ट, Mouse, printer. करेक्ट, CPU. ओके, प्रोसेसर, दैट इज राइट, ओके, ठीक है. सो दीज आर योर हार्डवेयर कंपोनेंट जो Yes, sir. आपके एक्सटर्नल, जो आपने दिखाए, जो आप देख सकते हो बेसिकली. एंड आपके प्रोसेसर के अंदर क्या होता है? रैम, motherboard, hard disk. These are also hardware components. We can say internal hardware components. Correct? Right? So basically Yes, your processor, motherboard, Yes, RAM, printer, laptop, desktop, all these are your hardware components. So hardware is any part of a computer that has physical structure. Hardware also includes your internal part. External part we know, right? External part, this monitor, printer, keyboard, mouse. And what are basically, see, this consists of your internal and external parts. So the hard disk is the hardware or the software? What? Hard Pardon? disk. Hard disk. Hard disk is hardware, beta. Hard disk is Okay, hardware. ma'am. The data thank you, stored, the data stored inside, or the program, your C programming language का जो सॉफ्टवेयर है, C का जो सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस का SQL सर्वर जो सॉफ्टवेयर है, वो जो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है वो सॉफ्टवेयर है. पर हार्ड डिस्क इज अ हार्डवेयर. जो भी चीज आप टच कर सकते हो, जैसे कि ये हार्ड डिस्क है, ये आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, दैट इज योर हार्डवेयर. रैम इज योर हार्डवेयर. हाँ बेटा बोलो. हाँ, हम कोई भी चीज स्टोर करते हैं तो वो हार्डवेयर में स्टोर हो जाती है. वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती है. ओ सॉरी, हार्ड डिस्क और डिस्क. हाँ, और वो एक काइंड ऑफ मेमोरी है. मेमोरी भी दो तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट? तो अब हम बाद में जब बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे मेमोरी के, जो प्रोसेसर और वो सब पढ़ेंगे, तब हम टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे कि कौन सा डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है और रैम कब यूज होता है. रैम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेमोरी. इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. वैसे ही रोम भी एक मेमोरी होती है. रोम इज नॉट हार्डवेयर, राइट? इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. तो रैम और रोम, रैम कब यूज होता है, रोम कब यूज होता है, दोज ऑल थिंग्स वी विल बी स्टडिंग. हार्ड डिस्क इज बेसिकली यूज फॉर स्टोरिंग डेटा. लेकिन जब डेटा स्टोर होता है और प्रोसेस के लिए आता है तो टेम्पररी वो कहीं पे स्टोर होता है. वो टेम्पररी कहाँ पे स्टोर होता है, दोज ऑल थिंग्स वी विल स्टडी जब हम मेमोरी पढ़ेंगे. ओके? तो आपका बेसिकली आपका बेसिकली ये जो सेकंड टॉपिक है ना, वो ये सारी चीजें कवर करेगा. सी मेमोरी, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, दैट एट दैट टाइम वी विल बी स्टडिंग कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क क्या है. ओके? सो बाय द टाइम अभी आप इतना समझो कि वो चीज जिसे हम टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर हार्डवेयर. जैसे हार्ड डिस्क आपने अगर कभी किसी ने पीसी से निकाली होगी तो यू माइट हैव सीन, तो वो हार्ड डिस्क इज अ हार्डवेयर. आपके ये हेडफोन है ना, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ हार्डवेयर कंप्यूटर रिलेटेड टू कंप्यूटर. द ईयरफोन दैट यू यूज, राइट? Yes, दीज आर योर हार्डवेयर. Processor, motherboard, RAM, printer, laptop, desktop, mouse, keyboard. This is example of hardware. मैम बोलो. अपने लैपटॉप में एयर फैन आता है ना, हाँ, वो किस में आते हैं? वो भी हार्डवेयर में आएंगे बेटा. एयर फैन तुम निकाल सकते हो, टच कर सकते हो, वो फैन घूमता है, दिखता है ना? ओके मैम. दैट इज हार्डवेयर.
ओके, अब सुनो, अब पहले सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प्स हार्डवेयर व्हाट टू डू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कितने लोगों ने यूज करा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो क्या है? डन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उठा के हम हाथ में नहीं टच कर सकते, राइट? राइट। वो क्या है बट बेसिकली? उसपे प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब डेटा प्रोसेस एक्सेल में कर सकते हैं। डेटा प्रोसेस इक्वल टू a+b लिखो तो आंसर देगा तुम्हें प्रोसेस करके, राइट? यस, हम जो फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं उसमें भी एक तरीके का प्रोसेस होता है, वर्ड में भी प्रोसेसिंग होती है। पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उठा के तुम टच नहीं कर सकते ना, राइट? हाँ, ओके। अब एक और चीज, अब अगर मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलूं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूं लाइक सिल्वर ओ, और इसको मैं रेड कलर करूं, ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो जाता है? सोचो, अपने आप तो होगा नहीं, ये कैसे हुआ? इसको करने के लिए ये जो पूरा तुम्हारा वर्ड बना हुआ है ना, ये भी कोई सॉफ्टवेयर यूज करके, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके ये वर्ड बना है। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई जिसे यूज करके ये वर्ड एप्लीकेशन बन गई, वर्ड प्रोसेसिंग बन गया। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हार्डवेयर को बताता है क्या करना है, राइट? सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दैट इज योर सॉफ्टवेयर। सो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल, नोटपैड, गूगल क्रोम, these all are example of software. अब आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में? All right. Everything you do on your computer will rely on both hardware and software. दोनों में से कोई एक चीज होगी तो क्या कंप्यूटर बन सकता है? Equally important, right? दोनों के अपने अलग अलग रोल हैं and both of them are equally important. So if you are viewing something on web, अगर तुम वेबसाइट पे कुछ देख रहे हो, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट देख रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? तुमने एक वेबसाइट यूज करी, एक वेब ब्राउजर यूज करा, दैट इज गूगल क्रोम, यानी कि तुमने यूज करा सॉफ्टवेयर। कुछ भी टाइप करने के लिए तुमने क्या यूज करा? कीबोर्ड या माउस, तो दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो आप कोई भी काम कंप्यूटर पे करोगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन प्लेइंग दैट रोल। इज इट क्लियर FIBCA? यहाँ तक? यस ठीक है। Yes, ma'am. अब हम डन। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके। सॉफ्टवेयर में टाइप्स ऑफ, ओके, सॉफ्टवेयर में टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड बोथ, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम बेसिक फंडामेंटली देख रहे हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी और वी आर गोइंग टू सी इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल है? तो तुम मुझे बताओ पहले, तुम्हारे हिसाब से कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल है? टू यू कैन सी, डेस्कटॉप और लैपटॉप, डेस्कटॉप। हाँ, उसके अलावा कंप्यूटर्स कौन कौन से? जैसे कि डेस्कटॉप है, लैपटॉप है। डेस्कटॉप पूरा कंप्यूटर है, उसमें क्या क्या आता है पूरे कंप्यूटर में? यू कैन से मॉनिटर, कीबोर्ड, योर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्पीकर, CPU. ठीक है, these are your input and output devices. Okay, done. Right. Okay. And laptop is also a kind of computer. दोनों, लैपटॉप पोर्टेबल होता है और डेस्कटॉप यू नीड टू कीप ऑन डेस्कटॉप। इसके अलावा कौन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तुमने देखे हैं? अच्छा, सबने ATM मशीन यूज करी है? ATM मशीन? Yes, ma'am. Is it a kind of computer? Yes. Yes. यस मैम It is also a kind of computer. Yes, ma'am. वो भी एक तरीके का कंप्यूटर होता है, right? This is also kind of computer. So computer comes in variety of shapes and sizes. आप जब रिलायंस में जाते हो, वहां पे एक स्कैनिंग होता है, पता है? आपके प्रोडक्ट का स्कैनिंग होता है और आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स डायरेक्टली कंप्यूटर में आ जाती है। Have you seen that? हाँ, तो वो स्कैनर, that scanner is actually input device of your computer there.
तो ग्रोसरी में आप ग्रोसरी स्टोर में या रिलायंस में वहां पे भी आपने जो पूरा देखा है, पूरा डिवाइस देखा है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर। आपका बारकोड स्कैन होता है किसी लेजर के थ्रू और आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कंप्यूटर में आ जाती है। तो स्कैन ग्रोसरीज एट द स्टोर, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ योर कंप्यूटर, राइट? सो देर आर वेराइटीज ऑफ कंप्यूटर। हम डेली लाइफ में बहुत जगह पे कंप्यूटर्स देखते हैं। सो हम बेसिकली वाइड कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है, दैट लेट अस सी। डेस्कटॉप, लैपटॉप वी आर अवेयर ऑफ। टैब्स कितने लोग यूज करते हैं? टैबलेट, इज इट अ कंप्यूटर? Yes. Is it a computer? Yes, ma'am. Yes, that is also your computer, right? In that you can view, you can play game, you can do various such things. You can surf any of the website, you can do booking of your airplane tickets, you can do banking, you can do various things using those small tablet and your smartphone. So those are also example of computers. Server, कितने लोगों को सर्वर के बारे में पता है? सुना है नाम? हाँ. So what do you know about server? Okay. तो सर्वर क्या है? What is server basically? थोड़ा बहुत जो भी लगता है, you can tell me. Which What is where we can save where we data. can store our data via हाँ. internet. Okay, fine. A centralized repository of data, right? Centralized repository. एक ऐसा सर्वर जहां पे डेटा स्टोर है और मल्टीपल लोग मल्टीपल प्लेसेस में, मल्टीपल सिटीज में उस सर्वर के थ्रू आपका डेटा एक्सेस हो सकता है। तो आई कैन से सर्वर इज आल्सो अ काइंड ऑफ कंप्यूटर वेयर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज स्टोर्ड and that data can be accessed from any part of the country or world anywhere. So server are basically used, it is a large repository of data. It is used to store your huge amount of data. So that is also a server जहाँ पे data store होता है। उस server के through हम data access कर सकते हैं, वो data use कर सकते हैं। So that also I can say it is a kind of computer or a storage place. Then smartphone, everyone of you might be using. और ऐसे कौन से कंप्यूटर ऐसे there are other types of computer that is wearable. Wearable मतलब हम उनको पहन सकते हैं। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट वॉच, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ योर कंप्यूटर। यस, देखो अगर तुम स्मार्ट वॉच और लैपटॉप को कंपेयर करोगे तो वो सारी चीजें जो लैपटॉप पे होती है वो स्मार्ट वॉच में नहीं हो सकती, बट काफी लिमिटेड चीजें स्मार्ट वॉच पे भी हो सकती है। लाइक इट कैन काउंट हाउ मेनी स्टेप्स यू हैव वॉक। सो वेरिएबल्स like smartwatch is also an example of your computer. Do you agree with that? Yes. Yes. Right? Yes, ma'am. Many of you use a high defined high range TV gaming or gaming consoles or video games, right? There are basically there are such devices which are basically solely used for gaming के लिए use होती है। That is also example of your computers. So we will start with very basic type of computer. Everyone might have seen that desktop computer, इसमें main 3 चीजें होती है, your monitor, keyboard, processor। ये इसे processor कहते हैं, but actually it is a cabinet। इसके अंदर बाकी सारी चीजें होती है। क्या क्या होता है इसके अंदर? मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है, रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, वो सब इसके अंदर होता है। So this is generally called a cabinet, and cabinet consists of your all internal things which are used for storing the data, and this is your mouse. So इस desktop में input device कौन कौन सी है SYBCA? Which are input devices used here? You can see keyboard and mouse, and monitor is your output device. Monitor is your output device. Okay, and this is your cabinet. In this cabinet there are various component. कोई भी एक या दो component कोई मुझे बता सकता है इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा ग्राफिक कार्ड वगैरह होगा, हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड, राइट? इट इज इनसाइड दिस। ओके, दिस इज योर लैपटॉप। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? दिस इज पोर्टेबल, इसे उठा के हम इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं, एंड वी नीड टू चार्ज इट। एक बार इसे चार्ज कर दिया, 2 या 3 आवर्स की बैटरी अगर इसमें चार्ज हो गई, फिर हम इसे आराम से
विदाउट प्लग पॉइंट इसे यूज कर सकते हैं. सो दिस इज योर लैपटॉप. इट इज ऑल्सो अ कंप्यूटर. ये भी वही सारी चीज करता है जो ये आपका डेस्कटॉप करता है. टेक्स इनपुट, प्रोसेस डेटा एंड प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स. देन कम योर टैबलेट. यस, हैंडहेल्ड डिवाइस. लैपटॉप को तो फिर भी डेस्क पे रखना पड़ता है, उठा के लैप पे रख सकते हैं. इसको तो पाम पे रख के भी हम ऑपरेट कर सकते हैं. सो दिस इज योर टैबलेट. जनरली इसके अंदर इसके साथ एक्सटर्नल कीबोर्ड अटैच नहीं होता है ना. इसमें भी ये सिर्फ टच स्क्रीन डिवाइस है जिसे टच करके वी कैन गिव द इनपुट. वी कैन इजिली गिव द इनपुट एंड वी कैन डू अवर वेरियस वर्क. सो इट्स अ टच बेस्ड डिवाइस. इट इज ऑल्सो अ computer, but basically it is a touch based device. Then as we talked about a server, so basically server is a computer that serves up information to other computers on network. Can you give me some such example जहां पे सेंट्रलाइज डेटा के बारे में कुछ बता सकते हो? चलो लेट मी टेल यू. मैं बताती हूँ. आई टेल यू कि सेंट्रलाइज डेटा क्या होता है, सर्वर क्या होता है. सिल्वर ओक इज अ यूनिवर्सिटी. एम आई राइट? सिल्वर ओक. यस मैम. उसके अंदर कितनी स्ट्रीम्स चलती है? ओके, उसके अंदर कितनी स्ट्रीम चलती है? इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग है. यस. यस. बीकॉम, बीसीए, एमएससी. यस मैम. बीबीए. इंजीनियरिंग, बीबीए, Correct. एमबीए. एब्सोल्युटली करेक्ट. अब हमारे लिए ये अलग अलग कोर्स हैं, पर सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी के लिए ये सारे कोर्सेज सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी के ही हैं. सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी को ये आइडेंटिफाई करवाना है कि उसके पास कितने स्टूडेंट हैं टोटल. तो सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी क्या करेगा? उसके सारे स्ट्रीम्स के सारे स्टूडेंट काउंट करके एक काउंट डिस्प्ले करेगा कि हमारे पास टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं, राइट? तो अब तुम मुझे बताओ कि बीकॉम, एमबीए सबका, सारे स्टूडेंट का डेटा एक जगह स्टोर होना चाहिए कि अलग अलग कंप्यूटर पे स्टोर होना चाहिए? एक जगह पे. ठीक है, यानी उसकी स्टोरेज की जगह एक होनी चाहिए, राइट? तो कहना है कि सिल्वर ओक का एक सर्वर है जिसमें सारे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर है. वो स्टोर ऐसे होगा कि ये बीसीए के स्टूडेंट है, ये फर्स्ट ईयर बीसीए के, सेकंड ईयर बीसीए के, इस तरीके से डेटा स्टोरेज इज डिफरेंट थिंग. लेकिन सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? एक सर्वर पे, यानी एक जगह पे. ठीक है. अब मुझे बताओ कि मान लो यूनिवर्सिटी में एक जगह पे वो सर्वर रख दिया है मैंने. तो क्या मुझे वो डेटा एक्सेस करने के लिए सिर्फ सर्वर ही यूज करना पड़ेगा या मैं दूसरे कंप्यूटर से वो डेटा एक्सेस कर सकती हूँ? दूसरे कंप्यूटर से कर सकते हो. करेक्ट. तो वो सर्वर और दूसरे कंप्यूटर कैसे कनेक्टेड है? वाया इंटरनेट. Yes, via Networking. network or internet. Yes, via network. Basically, via network they are connected, right? So this is all about your server, a computer that is actually a centralized thing, and from that we can access data from anywhere, right? So that is example of your server. So ज्यादातर सर्वर का पर्पस क्या यूज होता है? सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोर करने के लिए सर्वर यूज होता है. It is also a type of computer, but its purpose is basically to store a huge amount of data, and that data should be able to access from anywhere. वो डेटा मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकती हूँ. करेक्ट? डन? Yes, ma'am. Okay. Now the next type of computer. Laptop is done, tablet is done, server. Other type of computer, उसमें basically smartphones. Why you use your smartphone? What is purpose of your smartphone? कितने लोगों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के फॉर्म स्मार्टफोन यूज करके भरे थे? कितने लोगों ने कॉलेजेस सर्च करे थे? राइट. हम उसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं. कहीं भी कैरी कर सकते हैं. एग्जैक्टली. एंड एक्चुअली वी कैन एटलीस्ट फिल द फॉर्म. हमारा जो भी आपका मार्कशीट है उस सबकी सॉफ्ट कॉपी भी उसमें स्टोर हो सकती है, राइट? और वो जो मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी अटैच करके आप मेल भी कर सकते हो, राइट? So this is how your smartphone is a kind of computer. Wearables में smart watch is a best example that everyone, many of you have seen or might have used.
तो वेरिएबल्स, कंप्यूटर्स आर नाउ दीज डेज वेरिएबल आल्सो, हम उसे वेर भी कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच टेल यू कि आपने पूरे दिन में कितने स्टेप्स चले हैं, दैट कैन बी गिवन, दैट इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन बाय योर स्मार्ट वॉच। आजकल टीवी भी स्मार्ट आते हैं, डू यू नो दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. And the next thing is that Yes, ma'am. you can also use your TV in various way. Like you can connect your phone to your TV, or your TV itself has a internet. Your TV itself has a like Netflix and Hotstar such. YouTube. You can connect Yes. Bluetooth also. Yes, exactly. Bluetooth, Chromecast, everything you can. So your TV is also smart. TV are also having characteristics of computer these days, right? So these all were the types of computer that we have seen. So basically, we have seen today what is computer, how do you define computer, what are hardware and software devices that we can use. Now the next thing I am going to tell you today is कि what is data and information. अच्छा, कंप्यूटर्स तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हमने आज कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखा, ओके? No, ma'am. No, ma'am. Nothing, ma'am. No, ma'am. Done. Now the last thing I'll tell you about data and information, उसके related description I'll be giving you in the next lecture. We are left with 4 to 5 minutes. I'll just take 4 to 5 minutes and then I will wind up the lecture. So before winding up, do you, or rather, do you know about the term data and information? सबने डेटा तो सुना होगा, है ना? डेटा टर्म और इंफॉर्मेशन. Yes, ma'am. क्या डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस है या दोनों सेम है? डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस है या दोनों सेम है? मैम डिफरेंस है. डिफरेंस Difference है ma'am. करेक्ट. तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन? अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो तुम्हारे हिसाब से डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन वो होता है जो हमने कलेक्ट किया होता है खुद पर से। कलेक्ट तो हम डेटा करते हैं बेटा. कलेक्ट हम डेटा तो स्टोर करते हैं. हाँ, डेटा स्टोर Data को करते हैं, ठीक है. yes. डेटा कलेक्ट और कैप्चर करते हैं, फिर डेटा को स्टोर करते हैं, फिर क्या करते हैं? Collection of data in a proper manner is information. Not collection of data beta. Once data is collected and when data is processed, it gives us information, right? तो data और information के बीच का difference क्या होता है? Data is generally you just collect text, graphics, whatever, right? And you perform certain kind of process, and then when the result is produced, it can be known as either information or sometime knowledge also. तभी हम information term ही use करते हैं. तो समझो कि मेरे पास इस तरीके से आया, let me tell you, हाँ, एक ही चीज, एक एग्जांपल बताती हूँ and then wind up. अभी मैं आज डेटा कलेक्ट करूंगी. फ्रॉम टुमारो आई विल शेयर दिस शीट फॉर अटेंडेंस, बट टुडे आई विल बी कलेक्टिंग ओनली अ डेटा. So what I'll be doing is I'll be doing like this, right? Say Arjun, सबका नाम यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, ठीक है? एली, सबका नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? So this is what, this is data. उसके बाद एक रिपोर्ट जनरेट होगी. उस रिपोर्ट में ऐसा आउटपुट आएगा. डेट दिस, FIBCA, टाइम दिस, टोटल, हाँ वेट बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 65. यहाँ पे मैं सब स्टूडेंट्स का नाम लिख दूंगी, हाँ, ठीक है? दैट इज माय डेटा. देन समवन विल आस्क मी कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो इन सब का सम करूंगी या काउंट करूंगी. अटेंडेंस क्या बेटा? अटेंडेंस लेनी है ऐसा? हाँ, अटेंडेंस लूंगी. आई विल टेक अटेंडेंस. यस, अगर तुम इस शीट के बारे में कह रहे हो तो यहाँ पे नाम होगा और यहाँ पे अटेंडेंस होगी. वो हो गया डेटा. फिर मुझसे कोई पूछेगा कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो मैं इन सबको काउंट करूंगी. दैट इज एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन. इतना समझ में आया? हम डेटा और इंफॉर्मेशन
हाँ, हम डेटा Yes, ma'am. फिर से देखेंगे. ओके, अब जस्ट वेट करो एवरीवन. टुडे आई विल टेक अ क्लिक ऑफ योर दिस विंडो एंड फ्रॉम टुमारो आई विल शेयर अ शीट फॉर अटेंडेंस. आज आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड अ शीट, सो आई विल जस्ट टेक अ क्लिक. राइट, जस्ट वेट एवरीवन फॉर 2 minutes. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन बेटा? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. And everyone No, ma'am. keep on asking. Okay, everyone keep on asking me. समझो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बीसीए ध्यान रखना. तुम 63 स्टूडेंट्स हो. कुछ लोग कंप्यूटर्स पढ़ के आए हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आए हैं. तो अगर कोई आंसर दे देता है और दूसरा नहीं दे पाता है तो ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं पूछूंगा. राइट, जिसे नहीं आता है यू आस्क. अगर सिंपल क्वेश्चन इवन इफ यू डोंट नो हार्डवेयर यू आस्क इट, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है. वी आर एक्सपेक्टिंग कि कई लोग हैं जो बिल्कुल भी कंप्यूटर्स पढ़ के नहीं आए.